کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے جنگلات صرف ہرے بھرے درختوں کی کہانی نہیں بلکہ بقا، محنت اور قدرت کے حیرت انگیز رازوں کا خزانہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ درخت برف کی تہ میں بھی زندہ رہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایسے درختوں کے بارے میں جو نمکین پانی میں سانس لیتے ہیں؟ کیا انسانوں نے بھی کچھ جنگلات خود اگائے ہیں، اور اگر ہاں تو کیوں؟ السلام علیکم، میرا نام حسن علی ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک خاص ایکولوجیکل زون کے بارے میں جسے ہم الپائنز برچ کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سپیشیز ٹری لائن یعنی درختوں کی حدود 4000 میٹرز سے لے کر سنو لائن یعنی برف کی حدود 4500 میٹرز تک پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹری لائن پر درخت نہیں اگتے اور سنو لائن پر برف کبھی بھی مکمل طور پر نہیں پگھلتی، یہاں تک کہ گرمیوں میں بھی برف جمی رہتی ہے۔ یہ تصویر الپائن یعنی بلند پہاڑی علاقے کی نباتات یعنی ویجیٹیشن کو دکھاتی ہے، جس میں خاص طور پر برچ کے درخت شامل ہیں۔ یہاں پتھریلی زمین پر چھوٹی جھاڑیاں، گھاس اور پھول اگے ہوئے ہیں۔ الپائن علاقے سرد اور سخت موسم والے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کی ویجیٹیشن اینڈ پلانٹس ان حالات کے مطابق ہوتی ہیں۔ برچ کے درخت بھی ان اونچائیوں پر پائے جاتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسے ڈوارف فارسٹ کا جہاں بہت سخت کلائمیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے پانی کی کمی اور سمرز میں گروئنگ سیزنز بہت مختصر ہوتے ہیں۔ یہاں درخت اپنی کم اونچائی کی وجہ سے سرد ہواؤں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ زمین کے قریب ہوا کی رفتار نسبتاً کم ہوتی ہے۔ یہ ٹریز اپنے اپورڈ برانچز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ سن لائٹ حاصل کر سکیں۔ ان کے برانچز اوپر کی طرف ہوتے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ٹریز کس طرح اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اڈیپٹ کرتے ہیں۔ ان کی گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ راکس کے بیچ گرو کریں تاکہ کولڈ ونڈز سے بچاؤ ہو سکے، کیونکہ یہ ونڈز ان کے تھن سٹیمز میں موجود سیپ کو فریز کر سکتی ہیں۔ یہ سپیشیز ایور گرین ہوتی ہیں، یعنی پورا سال اپنے پتے برقرار رکھتی ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹری ڈینسٹی نسبتاً کم ہوتی ہے، کیونکہ سوئل میں موجود نیوٹرینٹس محدود مقدار میں ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی جگہ بہت ساری ٹریز اگ آئیں تو نیوٹرینٹس کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک فیسنیٹنگ ایکولوجیکل بیلنس یعنی ماحولیاتی توازن ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ فارسٹس اسٹور، گوجال، سکرڈو اور گزار کے ڈسٹرکٹس میں پائی جاتی ہیں۔ ان علاقوں کے مقامی لوگ اکثر ان درختوں کو ایندھن یعنی فائر وڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایک پریکٹیکل استعمال ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نیچرل ریسورسز کو سسٹینیبل یعنی پائیدار طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے۔ اب ہم کونیفرز پر بات کریں گے، جیسے کہ فر اور سپروس۔ یہ درخت 1000 میٹر سے لے کر 4000 میٹر کی اونچائیوں تک اگتے ہیں اور ناردرن پاکستان میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر کونیفر درخت ہمیشہ سبز رہتے ہیں، یعنی ان کے پتے نہیں گرتے، کیونکہ گرم موسم کی شدت کی وجہ سے ان کا بڑھنے کا دورانیہ یعنی گروئنگ سیزن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ تصویر کونیفرس فارسٹس کو ظاہر کرتی ہے، جن میں خاص طور پر فافر اور سپروس کے درخت شامل ہیں۔ یہ لمبے مخروطی شکل یعنی کونیکل شیپ کے درخت ہیں جو ٹھنڈے اور پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پتے سارا سال ہرے رہتے ہیں۔ یہ فارسٹ لکڑی اور انوائرمنٹ کے لیے اہم ہیں۔ ان کے پتے لمبے پتلے اور نیڈل شیپڈ یعنی سوئی نما ہوتے ہیں، جن پر ویکسی کیوٹیکل موجود ہوتی ہے تاکہ ایویپو ٹرانسپیریشن یعنی پانی کے ضیاء کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ ان کے سیدھے اور اونچے ٹرنکس کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویلیز میں زیادہ سن لائٹ حاصل ہو سکے اور درخت شیڈوز سے بچ سکیں۔ ان کے سیڈز کونز میں محفوظ رہتے ہیں اور سالوں تک ڈورمنٹ یعنی انیکٹو یا آرام کی حالت میں رہ سکتے ہیں، جب تک کہ جرمینیشن کے لیے فیوریبل کنڈیشنز پیدا نہ ہو جائیں۔ کونز نہ صرف سیڈز کو فارسٹ فائر سے بچاتے ہیں، بلکہ یہ کولڈ ویدر بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ درخت تھک بارک رکھتے ہیں، جو انہیں سرد موسم سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ ان کا فلیکسیبل ٹرنک یعنی تنا درخت کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کمپیکٹ اور کونیکل شیپ والا تنا تیز ہواؤں میں سٹیبلٹی فراہم کرتا ہے۔ ان کی سپرنگی برانچز نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہیں تاکہ ایکیومولیٹڈ سنو یعنی برانچز پہ جمع شدہ برف آسانی سے گر جائے اور شاخ وزن کی وجہ سے نہ ٹوٹے۔ روٹس کی بات کریں تو ان کی روٹس شیلو اور وائڈ سپریڈنگ ہوتی ہیں، جو کم غذائیت والے ماحول میں بھی غذائی اجزاء یعنی نیوٹرینٹس تلاش کر لیتی ہیں۔ یہ روٹس پرما فراسٹ سوئل سے بھی درخت کو بچاتی ہیں اور زمین میں اسے مضبوطی سے جکڑے رکھتی ہیں۔ پرما فراسٹ سوئل وہ مٹی ہوتی ہے جو 2 یا زیادہ سال تک مسلسل جمی رہتی ہے۔ فارسٹ فلور زیادہ تر خالی رہتا ہے، کیونکہ لمبے کونیفر ٹریز کی وجہ سے سورج کی روشنی رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت کم ویجیٹیشن پیدا ہو پاتی ہے۔ زیادہ تر کونیفرز ٹمبر اور پیپر ایکسٹریکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ درخت سوات، شانگلہ، ایبٹ آباد، گلگت، نوشہرہ اور سکرڈو جیسے ڈسٹرکٹس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اب ہم مینگرووز کے بارے میں بات کریں گے، یعنی وہ جڑیں
जो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन हासिल करने के लिए पोर्स के जरिए काम करती हैं। चूंकि ज्यादातर रूट्स पानी में सबमर्ज्ड होती हैं, इसलिए जो रूट्स पानी के कांटेक्ट में आती हैं वो ऑक्सीजन जज्ब कर लेती हैं। मजीद ये कि इनके रूट्स इंतहाई इम्पर्मिएबल होते हैं ताकि सॉल्ट कम से कम मिकदार में प्लांट में दाखिल हो। इम्पर्मिएबल यानी जिसमें से पानी ना गुजर सके। जो थोड़ा बहुत सॉल्ट प्लांट में दाखिल हो जाता है वो पुराने पत्तों में स्टोर हो जाता है, और जब वो पत्ते शेड होते हैं तो सॉल्ट भी शेड हो जाता है। इनके थिक लेदरी लीव्स में मौजूद पोर्स यानी स्टोमाटा को रेगुलेट किया जाता है, जिससे वाटर का कम ट्रांसपायर होना यकीनी बनता है। ये दरख्त न सिर्फ लकड़ी, ईंधन यानी फायरवुड और ऊंटों के चारे यानी कैमल फॉडर के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इनकी शाखों को मकान की छत बनाने, मिट्टी के साथ इमारत बनाने और हनी एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साहिली इलाकों में ये सॉइल इरोजन को कम करने का बायस बनते हैं, जिससे बंदरगाहों यानी पोर्ट्स के लिए ड्रेजिंग के वक्त को बढ़ाया जा सकता है ताकि उन्हें दोबारा गहरा किया जा सके। ड्रेजिंग वो अमल है जिसमें पानी के नीचे की मिट्टी या मलबा निकाला जाता है ताकि पानी की गहराई बढ़ाई जा सके या पानी की रवानी को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा ये फिश की ब्रीडिंग और प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड्स का किरदार अदा करते हैं। ये दरख्त सुनामी और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की मुकम्मल शिद्दत को रोकने के लिए एक मौसर रुकावट यानी बैरियर भी फराहम करते हैं। मैंग्रोव्स पाकिस्तान में इंडस डेल्टा, कराची और ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट्स और हब डेल्टा, गवादर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये तस्वीर मैंग्रोव के दरख्त को जाहिर करती है। ये एक ऐसा दरख्त है जो साहिली इलाकों के खारे पानी में उगता है। इसकी खास जड़ें होती हैं जो पानी और नमकीन माहौल को बर्दाश्त कर सकती हैं। मैंग्रोव के जंगलात साहिली कटाव यानी कोस्टल इरोजन को रोकते हैं और बहुत से समंदरी जानदारों के लिए अहम जगह हैं। कोस्टल इरोजन एक कुदरती अमल है जिसमें समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल की मिट्टी और जमीन को खत्म कर देती हैं। अब हम सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट की तरफ आते हैं। इस किस्म के जंगलात में दरख्तों, खुश्क घास और झाड़ियों का एक कुदरती इम्तिजाज यानी नेचुरल मिक्सचर पाया जाता है। दरख्त अमूमन राउंड शेप और थिक ट्रंक के साथ होते हैं ताकि पानी के ज़िया यानी वाटर लॉस को कम किया जा सके। इनके ब्रॉड लीव्स ज्यादा फोटोसिंथेसिस मुमकिन बनाते हैं, जबकि डीप रूट्स पानी की तलाश में मददगार साबित होती हैं। डिसिडुअस ट्रीज खुश्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से होने वाले पानी के ज़िया को रोका जा सके। ये ट्रीज टिम्बर, फायरवुड और जानवरों के चारे यानी एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। श्रब्स यानी झाड़ियां छोटी मगर गोल शक्ल की होती हैं और अक्सर कांटों वाली भी होती हैं ताकि पानी की बचत मुमकिन हो सके, जबकि इनकी गहरी जड़ें ज़ेरे ज़मीन पानी तक रसाई हासिल करती हैं। अब बात करते हैं इरिगेटेड प्लांटेशंस की, जहां कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज जैसे शीशम और बाबुल उगाए जाते हैं। इन ज़राती ज़मीनों में दरख्तों को ब्लॉक्स की सूरत में एक ही किस्म की स्पीशीज के साथ लगाया जाता है ताकि फसलों की कटाई आसानी से की जा सके। दरख्त बराबर फासले पर सीधी लाइनों में लगाए जाते हैं, जबकि ब्लॉक्स के दरमियान सड़कें रेगुलर पैटर्न में बनाई जाती हैं ताकि लकड़ी और मशीनरी की ट्रांसपोर्ट आसान हो सके। पानी के रास्ते उन ब्लॉक्स के दरमियान बहते हैं जिनमें पानी की सतह दरख्तों की सतह से नीचे रखी जाती है ताकि जड़ें पानी की ज्यादती यानी वाटर लॉगिंग का शिकार न हों। ऐसी प्लांटेशंस छांगा मांगा, लाहौर के करीब और चीचावतनी जैसे इलाकों में वाक़े हैं। ये तस्वीर इरिगेशन के जरिए सैराब किए गए एक घने जंगल को दिखाती है, जहां लंबे और सेहतमंद दरख्त एक कच्चे रास्ते के दोनों जानिब उगे हुए हैं। इन ट्रीज का इस्तेमाल मैच स्टिक्स, फर्नीचर, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे प्लाउ यानी हल या गेट बनाने और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए किया जाता है। कुछ दरख्त पल्प बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिससे पेपर बनाया जाता है, जबकि कुछ दरख्त वार्निशेस या मेडिसिन जैसे केमिकल्स बनाने में काम आते हैं। बाज़ ट्रीज स्पोर्ट्स गुड्स जैसे बैट्स या क्राफ्ट्स जैसे वुडन टॉयज बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा रेलवे स्लीपर्स जो ट्रैक के नीचे रखे जाते हैं बनाने में भी काम आते हैं, मगर ये रेल इंजन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। ये प्लांटेशंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफराद को एम्प्लॉयमेंट भी फराहम करती हैं। चलिए अब लीनियर प्लांटेशंस पर नजर डालते हैं। ये मैन मेड प्लांटेशंस होती हैं जो रोड्स, पार्क्स, रेलवेज या मोटरवे वगैरह के साथ लगाई जाती हैं। इन्हें सीधी लाइनों में और बराबर फासले पर लगाया जाता है और उमूमन एक ही किस्म की दरख्तों की स्पीशीज इस्तेमाल की जाती हैं। ऑल्दो उनकी तिजारती कीमत यानी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा नहीं होती, उनका मकसद सॉइल इरोजन को रोकना, शेड फराहम करना, एयर पोल्यूशन को कम करना और टेम्परेचर को कम करना होता है। कुछ ट्रीज फायरवुड के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। आखिर में थॉर्न फॉरेस्ट्स का जिक्र करें तो ये रेंजलैंड का हिस्सा समझे जाते हैं। उन दरख्तों की ऊंचाई उमूमी तौर पर 6 से 10 फुट तक होती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इनके ब्रांचेस पर बेशुमार थॉर्न्स मौजूद होते हैं
ताकि ग्रेजिंग को महदूद किया जा सके। इनकी डीप टैप रूट सिस्टम ज़ेर ज़मीन पानी तलाश करने में मदद देती है, जबकि छोटे लीव्स वाटर लॉस को कम करने का जरिया बनते हैं। इनकी अम्ब्रेला शेप्ड टॉप्स ज्यादा से ज्यादा सनलाइट कैप्चर करने के काबिल होती हैं। ये तस्वीर कांटेदार पौधों को दिखाती है जिनमें तेज नोकें होती हैं जो उन्हें जानवरों से बचाती हैं। अब हम दरिया के किनारे उगने वाले जंगलात यानी रिवराइन और बेला जंगलात की बात करते हैं, जो छोटी झाड़ियों, घास और दरख्तों का एक खास मिक्सचर होते हैं। दरख्तों की ऊंचाई आमतौर पर 2 मीटर से 18 मीटर तक हो सकती है। ज्यादातर ट्रीज में मजबूत तने पाए जाते हैं ताकि वो सैलाबी पानी को बर्दाश्त कर सकें। यही नहीं, ये दरख्त न सिर्फ हाई टेम्परेचर्स बल्कि एरिड कंडीशंस यानी खुश्क हालात को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस तरह नेचर इन फॉरेस्ट्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए डिजाइन करती है? ये फॉरेस्ट्स में कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले वाटर को टॉलरेट कर लेती हैं, यानी सॉल्ट के असरात के खिलाफ मुजाहमत की सलाहियत रखती हैं। मोस्ट स्पीशीज एवरग्रीन होती हैं, यानी सारा साल सब्ज रहती हैं, ताहम हर स्पीशी एवरग्रीन नहीं होती। ये फॉरेस्ट्स इंडस के बैंक्स के साथ साथ स्ट्रेट लाइंस में फैले हुए हैं। दरियाए सिंध के साथ साथ उनकी ग्रोथ का मतलब ये है कि ये जंगलात कुदरती सीधी कतारों में उगते हैं, जो न सिर्फ खूबसूरत मंजर फराहम करते हैं बल्कि माहौलियाती तवाजुन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बरकरार रखते हैं। कुछ जंगलात बुनियादी तौर पर सिंध में वाक़े हैं, जबकि कुछ दरियाए सिंध के पंजाब के हिस्से में भी मौजूद हैं और बाकी जहलम और चनाब के किनारों पर फैले हुए हैं। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। हमने मुख्तलिफ टाइप्स के फॉरेस्ट्स और इकोलॉजिकल जोन्स पर बात की। हमने एल्पाइन्स बर्च के ड्वार्फ फॉरेस्ट्स देखे, जिनमें दरख्तों की महदूद नशोनुमा और अडेप्टेशंस शामिल हैं, जैसे कि शाखों का ऊपर की तरफ होना ताकि ज्यादा सूरज की रोशनी हासिल की जा सके। हमने कॉनिफर्स जैसे फर और स्प्रूस के बारे में सुना, जिनके नीडल शेप पत्ते, थिक बार्क और स्ट्रेट ट्रंक्स हैं, जो इन्हें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद देते हैं। एक और अहम टॉपिक मैंग्रोव्स हैं, जिनमें स्पेशल क्रॉप रूट्स और सॉल्ट मैनेजमेंट के तरीके शामिल हैं। ये कोस्टल इरोजन को कंट्रोल करने में भी मदद करती हैं। इसके अलावा हमने सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट्स, इरिगेटेड प्लांटेशंस, लीनियर प्लांटेशंस, थॉर्न फॉरेस्ट और रिवरीन फॉरेस्ट पर भी बात की, जिनकी अपनी यूनिक खुसूसियात और फंक्शंस हैं। फाइनली हमने ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी जैसे इंडस बैंक्स, पंजाब, सिंध, जहलम और चिनाब की इकोलॉजी को भी समझा, जो हमें नेचुरल बैलेंस और एनवायरमेंटल अडेप्टेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। आज हमने सीखा कि हर माहौलियाती निज़ाम किस तरह अपने मखसूस खुसूसियात को अपनाता है ताकि मुश्किल हालात में जिंदा रह सके और तरक्की कर सके। Let's take a quiz now. Question 1. एल्पाइन जंगलात के लिए दरख्तों की हद्दे बुलंदी यानी एल्टीट्यूड क्या है? ऑप्शन A 4000 meters, ऑप्शन B 3000 meters, ऑप्शन C 2000 meters, ऑप्शन D 1000 meters. Answer 1 option A 4000 meters. Question 2. किस किस्म के दरख्तों के पत्ते नीडल्स की शक्ल के होते हैं? ऑप्शन A conifers, ऑप्शन B deciduous, ऑप्शन C palm trees, ऑप्शन D broadleaf trees. Answer 2 option A conifers. Question 3. कौन सा जंगल साहिली इलाकों को इरोजन से बचाता है? ऑप्शन A mangrove forests, ऑप्शन B tropical rainforests, ऑप्शन C wetland forests, ऑप्शन D desert forests. Answer 3 option A mangrove forests.